हाँ जी students, so we are going to continue this topic further. We have already completed the structure of the heart, and along with it we have also completed the process of double circulation, how double circulation is taking place, right? As we are studying the chapter of transportation, so what type of transportation have we considered here in the circulation? Blood circulation हो रहा है, लेकिन transportation किस चीज का हो रहा है? Oxygen and carbon dioxide. Means here we are only studying about the gaseous exchanges and the gases that which are being transported in our body. Along with this, the food is also being transported. आप लोग को पता है, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा तो उसमें हम ये देखते हैं या पढ़ रहे हैं कि जो खाना आपने खाया that gets digested within the various parts and hence it is been given to all the cells of your body. Is it clear? सारे सेल्स को पहुंचेगा, लेकिन सेल्स के पास पहुंचेगा कैसे? It is only one tissue that which helps in providing the transportation and that is the blood tissue. Okay, blood is acting as a tissue. Tissue क्या होता है? That is an aggregation of cells. ठीक है, may be the similar or dissimilar cells, लेकिन इकट्ठा सेल्स जो कि एक ही काम करते हैं. सारे सेल्स का एक काम मेन रहता है, एक ही जगह पे इकट्ठे फ्लो कर रहे हैं, and that is the blood is flowing with the number of the cells in it. And there are different types of cells. तीन तरह के सेल्स हमने पढ़े, कौन कौन से? RBCs, WBCs, platelets. ठीक है, so this is an aggregation. Blood is an aggregation of the cells and hence it is a tissue, and only this tissue, that is a blood tissue, that only helps in the providing of the or the transportation of the materials across our body. One method, that is of the process of the exchange of gases, we have studied in this chapter. Other is by the food also. ठीक है, as in the lower organism, sorry, in the high organisms, जैसे हमारे अंदर ये हार्ट है और हार्ट के साथ हम लोग पंपिंग हो रहा है हमारे ब्लड का, अपने आप ये सारा मैकेनिज्म जो है वो चलता जा रहा है. ऐसे ही साथ आता है हमारे पास फूड का. बच्चे प्लीज बी साइलेंट. ऐसे ही आते हैं हमारे पास लोअर ऑर्गेनिजम्स. लोअर ऑर्गेनिजम्स, काइंडली बी क्वाइट. हायर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे हमारे केस में हमारे पास हार्ट है, मैं ये बता रही थी कि हार्ट जो है वो पंपिंग करता है, प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड मूव होता है और मटेरियल्स कैरी करता है ना. हमारे अंदर तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, क्या लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर है? नहीं है. वेरी लोअर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द एनिमल्स लाइक दैट ऑफ द स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा. अर्थवर्म नहीं, वो थोड़ा हायर ऑर्गेनिज्म है. But the very low organisms like that of the sponges and the hydra, these are the you can say least advanced. ठीक है, ये सबसे नीचे है एनिमल्स के एडवांसमेंट में. So sponges and the hydra, these members basically they do not have any circulation of the blood or the tissue like that. So what is helping in the circulation for these members? That is only water. The body of the hydra, let's say I'm just making, ये आपको नहीं बनानी, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. This is the mouth and this is the tubular body of the hydra. Okay, this has the tentacles. Tentacles होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर. ये आपकी बुक में नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बुक में नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. ठीक है, so what is there is, this is the mouth of the hydra member. This is a member of the animals and ये सबस्ट्रेटम के ऊपर जुड़ा रहता है. सबस्ट्रेटम मतलब ऐसे किसी चीज के ऊपर चिपका पड़ा है. ठीक है, ये इसका सिलेंड्रिकल बॉडी है, ट्यूबुलर बॉडी है, राइट. जो भी मटेरियल्स इसने लेके जाने हैं, यानी कि फूड है या गैसेस हैं, कुछ भी मटेरियल है, इसे लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी. वाटर के साथ अंदर लेके गया, फूड प्लस वाटर जो है वो अंदर जाएगा, वाटर के साथ अंदर जाएगा, फूड अलोंग विद द गैसेस आल्सो, गैसेस मिक्स्ड इन द वाटर. ये सारी चीजें जो हैं ये पानी के अंदर डिसॉल्व होके बॉडी के अंदर जा रही. डन. क्योंकि ये बहुत लीस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़े बड़े ऑर्गन्स नहीं है. ठीक है, अब इसके बाद जो वाटर अंदर गया, ये वाटर पूरा सर्कुलेट होगा बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में वही वाटर सर्कुलेट हो रहा है. ठीक है, एंड गिविंग आउट द फूड एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज. इन टर्न इट इज कलेक्टिंग द वेस्ट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड आउट. समझ आया? पानी अंदर गया, पानी लेके क्या गया था? हमारी रिक्वायरमेंट्स, इस ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या? फूड लेके गया था, गैसेस लेके गया था, वाटर के अंदर डिसॉल्व. डन. जब अंदर गया वहां जाके सर्कुलेट होता है ना. सेल्स को फूड चाहिए है, सेल्स को गैसेस चाहिए हैं, वो पानी में से निकल के सारी सेल्स के पास आती जा रही है.
इन टर्न वो वापस क्या देगा, जैसे हमारे सेल्स में से ऑक्सीजन हमें मिलती है तो वापस क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऐसे ही ये भी देगा। ऑक्सीजन अगर गैसेस अंदर लेके जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस ये बाहर फेंकेगा, ठीक है। सो गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट बैक टू द वाटर, गैसेस कौन सी, ऑक्सीजन जैसी, ठीक है। एंड हेंस इट इज ऑल एक्सक्लूडेड आउट। क्या क्या निकला अब यहां से, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड फूड का वेस्ट, समझ आया। दिस इज ओनली विद द सर्कुलेशन ऑफ द वाटर, इट इज नॉट हैविंग एनी टिश्यू लाइक दैट ऑफ द ब्लड, ब्लड जैसा कुछ टिश्यू इसके अंदर नहीं है, ठीक है, समझ आया। सो फॉर लोअर ऑर्गेनिजम्स व्हाट इज हेल्पिंग इन सर्कुलेशन इज water, and what materials is it carrying towards inside of the body, gases like oxygen and nutrients with the help of the food. And when the water is circulated within the body, what it is collecting, carbon dioxide and waste. The waste and the carbon dioxide is given out with the help of what again, water, ठीक है। सो ये दोनों भी वाटर के अंदर ही मिक्स होके बाहर निकल गए, ठीक है, क्लियर। So this is how the circulation takes place in the lower organisms. Done. Now there is a very small little topic in your book about the circulation, that is the pulse rate. What is the pulse rate? What is the pulse rate? What is the pulse? हाँ जी, वो यहाँ से चेक करते हैं, बस इतना पता है हमें, है ना। 62 होती है। यहाँ पे रिस्ट के ऊपर यूजुअली डॉक्टर्स को चेक कराने जाते हो, हमारे यहाँ पे भी अगर आप डॉक्टर मैम के पास जाएंगे, बलबीर मैम के पास, तो शी विल बी जस्ट पुटिंग योर हर थंब हेयर ऑन योर रिस्ट एंड शी विल बी काउंटिंग द पल्स, है ना। सो व्हाट इज दैट पल्स फॉर द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी? 98.6 डिग्री Fahrenheit, and in Celsius it is 37. Yes, it's 37 degree centigrade or it is 98.6 degree Fahrenheit, ठीक है। So normal body temperature पे, very intelligent you people are, kindly listen now, हाँ जी। So नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे जो हमारी पल्स रेट रहती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 72 to 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमारी एक नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। हमारा आज अगर टेम्परेचर नहीं है, चिल्स फील नहीं हो रही है, टेम्परेचर लो नहीं है, टेम्परेचर हाई नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे सिस्टम्स हैं वो नॉर्मली काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंजेस आते हैं, अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है या अगर टेम्परेचर लो हो जाता है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स विल बी फेस्ड बाय द वेरियस ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। जो सारे ऑर्गन सिस्टम्स है हमारे, वो सारे ऑर्गन सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स फेस होनी शुरू हो जाएंगी। हार्ट बीट सबसे पहले हमारी फास्टन अप हो जाती है, ठीक है। आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, आप खुद उसको मेजर करके देखेंगे, यू जस्ट कीप योर थंब ऑन द रिस्ट हेयर, इस तरह, ठीक है, टेढ़ा करके यहाँ पे रखो ऐसे, एंड यू फील द बीट, सेंटर में रखना है, बिल्कुल सेंटर में रखना है। ये देखो मेरा थंब कहाँ पे है, ये सेंटर है ना, ये बेंट है हैंड का, ये रिस्ट का बेंट है, ठीक है। बेंट के नीचे यहाँ पे ऐसे टेढ़ा करके रखो एंड देन प्रेस इट, हल्का प्रेस करो, बहुत ज्यादा घुटा मत देना उसको। फील हो रहा है, यू आर फीलिंग द बीट्स, फील हो रही है, नहीं हो रही, यू ऑल आर लिविंग बेटा, I can feel mine. देखो, keep the thumb like this, टेढ़ा रखना है, ठीक है, and then press it. हड्डी पे नहीं, ये नीचे नीचे नीचे, ये देखो आपका ये बेंट है, उसके आपका बेंट जो है ना, वो बेंट का आपका थंब का ये आना चाहिए ऐसा, ठीक है। प्रेस करो, टेढ़ा रखो, टेढ़ा ऐसे स्लांट में रखो। अरे बच्चे, यू आर गेटिंग इट वेरी मच हेयर, आपको यहाँ पे साइड पे फील हो रहा है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, आपको थोड़ा हल्का अंदर भी हो सकता है, हो रहा है, हो रहा है, देखो चेक करो, यहाँ थंब लगाओ, यहाँ पे मेरे यहाँ पे थंब लगाओ, फील हुआ? हाँ जी, आप लोग को फील हो रहा है? बीट्स, I'll teach you how to again. How to do it again, I'll teach you afterwards. Listen. Okay, okay. Silent. Listen.
Now, by keeping your thumb here, right, and by using the watch of the another person, because आप नहीं देख सकते ऐसे करके, ठीक है, आपने दूसरे पर्सन की एक वॉच रखनी है अपने पास, राइट, या आपने ही वॉच रिमूव करके साइड पे रखे, एंड फॉर 1 मिनट यू काउंट द बीट्स, ठीक है, ऐसे पड़े पे 1 मिनट पे आप इनको अगर काउंट करते हैं, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 70 to 72 और नियरली 75, ठीक है, 70 से 72 हम अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, लेकिन 75 को भी नॉर्मल लेके चलते हैं, दैट इज नॉट द एक्सट्रीम केस की बुखार चढ़ गया, 75 तक नॉर्मल रहता है, ठीक है। अगर ये 1 मिनट में आपके पास स्टिल 75 काउंट आ रहा है, ठीक है, 70 से लेके 75 तक काउंट आ रहा है, दैट मीन्स योर टेम्परेचर इज नॉर्मल। नाउ सपोजिंग इफ एनीबडी इज सफरिंग विद फीवर, ठीक है, फिर आप उसके ये बीट्स को अगर काउंट करोगे तो वो बहुत फास्ट अप हो जाता है, दैट इज बीटिंग लाइक 80+, ठीक है, वो 80+ में चला जाएगा, समटाइम्स 90+, राइट, तो वो क्या है, दैट इज द हाई फीवर्स, ठीक है, बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट हैविंग द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, दैट इज व्हाई वी डू फील द प्रोसेसेस दैट व्हिच आर गेटिंग वीक, ओके, सो दैट इज द पल्स रेट, ठीक है। हमारा हार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि कंट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, हमने पढ़ा ना, फर्स्ट इज कंट्रैक्शन, देन इज रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो वो जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, दैट इज क्रिएटिंग द बीट्स आल्सो, ठीक है। यही वाला जो ऐसा वाला कंफर्म हो रहा है, ये आप इस तरह फिस्ट को भी करके देखेंगे, आपको ये झटका सा फील होता है, जर्क फील होता है ना, इस तरह से आप अपने हैंड को भी करके देखो। सो व्हाट इज दैट, सॉरी, व्हेन यू आर डूइंग दिस एट द सेम टाइम योर हार्ट बीट भी ऐसा ही आपको फील होता है, जब भी आप इसके ऊपर ऐसा फिंगर या अपना थंब रखते हो, ठीक है, ऐसे अगर इसके ऊपर फिंगर या थंब रखते हो तो वहां पे आपको ये फील होगा। अगर नहीं किसी को फील हो रहा तो हल्का से इसको टैप कर लो, इस तरह से हल्का टैपिंग करो 2 फिंगर्स के साथ, बेटा 2 फिंगर्स के साथ हल्का टैपिंग करो 3-4 टाइम्स एंड देन फील इट। हुआ? जिन लोग को पहले फील नहीं हुआ, हुआ? हो रहा है अभी, देखो चेक हुआ, अब फील होगा। यहाँ पे रखो, ऐसे रखो, हाँ, जस्ट ऐसा हल्का हल्का बीट फील होता है, ठीक है, ओके ओके, डन। सो दिस इज द पल्स रेट, ओके। व्हेन यू विजिट द फिजिशियंस और द डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं तो हमें वो किस तरह से चेक करते हैं, द कीप अ स्टेथोस्कोप, है ना, उनके गले में यूजुअली हैंग रहता है, the earpiece they put in their ears and that has a small disc at the other end of the pipe, ऐसे ही होता है ना, स्टेथोस्कोप देखा है सबने, ठीक है, that is the device which is used to measure the pulse rate, that is stethoscope, okay. The stethoscope is used by the doctors to confirm the beats, हम लोग ये तो टेम्परेरीली ले लेते हैं, बट अदरवाइज अगर हमें प्रॉपरली 100% कंफर्म करना है तब ये यूज किया जाता है, या ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए। अगर आप पुरानी मशीन्स देखेंगे, जो थोड़ी ट्रेडिशनल मशीन्स थी पुराने जमाने वाली, जिसमें वो पंपिंग करके कफ बांध देते हैं, पंपिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो उसके बाद ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, उसमें भी वो डिस्क रखते हैं हमारी अपर आर्म और लोअर आर्म के जॉइंट पे, है ना, वो डिस्क रखते हैं जॉइंट पे, क्योंकि जैसे जैसे रिलीज करेंगे ब्लड स्टार्ट होता है फ्लो होना और वो उसको नोटिस करता है। सो व्हेन दे कीप दैट डिस्क आल्सो, दैट डिस्क इज वेरी सेंसिटिव एंड दैट फील्स द ब्लड फ्लो आल्सो, ठीक है, मतलब उसके अंदर अगर आप कभी सुनोगे, आई ट्राई टू गेट वन फॉर यू पीपल टू हैव एन एक्सपेरिमेंट ऑन इट, अगर आप स्टेथोस्कोप के ईयर पीस में से अगर वो डिस्क लगा के सुनोगे तो आपको ब्लड फ्लो की आवाज भी उसमें सुनाई देती, ठीक है, दैट इज द फ्लो ऑफ द ब्लड व्हेन इट इज गोइंग हाई, व्हेन इट इज गोइंग लो, ऐसी सुनाई देती, वो बीट नहीं फील होता, जैसा यहाँ पे बीट फील हो रहा है ना, ऐसा बीट नहीं फील होता, वहां पे फ्लो ऑफ ब्लड फील होता है, ठीक है। सो दैट इज द used by, this is the device which is used by the doctors for noting down the pulse rate or even for checking the blood pressure, ठीक है। हमारी खुद की सांस की जो आवाज है उसको भी फील करने के लिए स्टेथोस्कोप्स लगाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके यूजेजेस हैं, बट इट इज यूज्ड बाय द डॉक्टर्स, okay, right, getting, so this was all about your circulation system.
that is the system of the circulation. And now we are coming to the next topic, that is excretion. Any doubt to anyone? Any problem? Online students? Online students, kindly raise your hand if you have any doubt in any of the topics. All clear? Nice. Okay, so continuing with the second topic, and that is the excretory system or the excretion. अभी हमने यहाँ लोअर ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बात बोली है कि जो वाटर है वो रिक्वायर्ड मटेरियल अंदर लेके आता है और वाटर ही जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंकता है ना? क्या हमारे अंदर ऐसा है कि ब्लड ही अंदर लेके आता है और ब्लड ही बाहर फेंकता है वेस्ट मटेरियल को? नो, ब्लड डजंट कम आउट ऑफ द बॉडी. ब्लड हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है. ब्लड हम लोगों ने लेना भी नहीं है. हमने लेना क्या है? न्यूट्रिएंट्स. हम खाने की फॉर्म में, पानी की फॉर्म में, इन चीजों के साथ हम लोग न्यूट्रिएंट्स को, केमिकल्स को, जो हमारे अंदर रिक्वायरमेंट्स है उन सारी चीजों को कंप्लीट करते हैं. हम ब्लड तो नहीं पीते, है ना? तो ब्लड जो है वो ऑलरेडी हमारे अंदर है, ठीक है. मटेरियल्स एक्सटर्नली अंदर जा रहे हैं और एक्सटर्नली ही रिमूव आउट होंगे. ब्लड सिर्फ अंदर है और वो अंदर ही रहेगा. डन. सो फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट, द एक्सक्रीशन इज देयर. Excretion is the system, or you can say excretion is the process that helps in removal of the waste from the human body. It is a system which helps in the removal of waste from human body. It helps in the removal of the waste from human body. That is what? That is excretion. This process is done by, or it is conveniently made possible by the system which is called as excretory system. Now the excretory system has the various components. What are the various components? Components मतलब किस किन चीजों का बना है? Excretory system is made up of, number 1, kidneys. There are 2 kidneys for a normal human person, but there are certain human beings that which are born by with a single kidney also. ठीक है, single kidney होता है कई लोगों में, and rarest are the cases. If there is a single kidney by birth also, then also it is normal for that person. ठीक है, it's not a problem. Done. Then there are 2 ureters, 1 urinary bladder, and 1 urethra. So these are the various components of the excretory system. There are 2 kidneys, 2 ureters, 1 urinary bladder, and 1 urethra. Got it? Now, how are these all arranged? Kidneys are called as the units of excretion. Kidneys को हम unit of excretion या unit of excretory system कहते हैं. Unit का मतलब क्या है? आपने यूनिट अभी तक पढ़ा होगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, टाइम एंड मोशन जैसे कोई चैप्टर्स में, है ना? नहीं, अगर नॉर्मल कंडीशंस में से एक है, जैसे बाय बर्थ आई एम सेइंग, अगर बाय बर्थ एक ही किडनी था तो उस पर्सन की बॉडी सारी यूज टू उस तरीके से हो जाएगी, वो एक बॉडी एक किडनी के ऊपर भी सर्वाइव करेगा, ठीक है. लेकिन अगर मिड ऑफ द लाइफ अगर एक किडनी डैमेज हो जाता है तो वो बर्डन सारा दूसरी किडनी पे पड़ जाता है और उसका शेल्फ लाइफ जो होता है पर्सन का वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. देन दैट इज अ प्रॉब्लम. स्टार्टिंग में 2 हैं लेकिन बाद में लेटर ऑन डैमेजेस की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, दैट कैन लीड टू द डिफरेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दैट पर्सन, ठीक है. हाँ जी, दिस किडनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूनिट ऑफ excretory system या excretion. Why we are calling it as unit? यूनिट मैंने अभी बोला, आप लोगों ने यूनिट पढ़ा है, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर पर सेकेंड. आप लोगों ने टाइम एंड मोशन चैप्टर किया, स्पीड किया, ठीक है. तो उनमें आपने वो यूनिट्स किए, वो यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स फिजिक्स रिलेटेड हैं. तो यहाँ पे हम यूनिट इसको क्यों बोल रहे हैं, यूनिट ऑफ excretory सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज द होल ऑफ द excretory सिस्टम इज ओनली बेस्ड अपॉन द वर्किंग ऑफ किडनीज, ठीक है. विदाउट द फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज दीज पार्ट्स आर नथिंग. इनका अपना काम कोई नहीं है, मतलब अपना मेजर काम नहीं है, काम तो है खैर, ठीक है, उनका कोई अपना मेजर रोल नहीं है.
अगर किडनीज अच्छे से काम कर रही हैं तो ये सब भी काम करेंगी, अगर किडनीज खराब होगी तो ये कल्ले एक्सक्रीशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज अ यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड द यूनिट ऑफ किडनी, मतलब किडनी भी किसके बिहाफ पे काम करती है, किडनी सारा का सारा काम नहीं करती है। किडनी जो होती है इनके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका नाम है नेफ्रॉन्स। व्हाट आर द सेल्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज अ सेल दैट विच एक्ट्स एज अ यूनिट ऑफ किडनी, मतलब किडनी का काम जो है वो नेफ्रॉन के बगैर अधूरा है। एंड वन किडनी हैज मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन इट, ठीक है। सो दीज आर द सेल्स, ये सेल्स का नाम है नेफ्रॉन्स एंड दे आर कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। इवन द यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए अगर माइन्यूटेस्ट अगर आपको एमसीक्यूज आते हैं और उधर अगर आपके पास नेफ्रॉन आंसर होगा, मतलब ऑप्शन में होगा, देन यू विल बी चूजिंग नेफ्रॉन, ठीक है, बिकॉज दिस इज द वन विच इज एक्चुअली हेल्पिंग इन द रिमूवल ऑफ द वेस्ट, दिस इज द वन विच इज एक्चुअली हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, okay. Kidney itself is not pura ka pura, it is not involved, it is only the kidneys parts called as the cells called as nephrons which are helpful for urine formation. Done, okay. Getting any doubt? Now let us proceed with the structure of excretory system. What is the structure of excretory system? The excretory system consists of two kidneys, I already told you, right? This is excretory system now of humans. The human excretory system, now you'll be drawing the diagram and everybody should use a pencil, okay. No pen for drawing the diagrams, please. What is the shape of the kidneys? It is bean shaped, right? The two kidneys are bean shaped, facing one another. हाँ जी, स्टोमेटा भी ऐसा ही होता है. Facing one another are the two kidneys. Facing one another. Beta, when the teacher is drawing the diagram, she is speaking a lot along with the diagram. है ना? All those points are needed to be kept in mind. No scales. For drawing the diagrams, always use freehand drawing. Mr. Arjun. He knows it. The two kidneys from this bent portion, ये जो bent part आपने बनाया है दो kidneys का, इनमें से arise होता है next part that is called as ureters. Ureters are the pipe-like structures that which arises out from here. Broad from the starting, narrow at the ends. Okay. Broader ऊपर से बनाना है आपने इसको, starting से broad बनाना है और narrow towards the ends. These then leads towards the urinary bladder. The ureters, they open towards the urinary bladders. So this is the urinary bladder. Urinary bladder and then the urethra. The urinary bladder and then the urethra. Dotted बनाया है ताकि उसका shape equivalent आए. And the urethra should be properly in the center. Okay. This should be the opening of the urethra should be properly in the center. So this is the bladder. Urinary bladder is a muscular bag that in which the urine is collected, right? The two ureters are the pipe-like structures. They open within the urinary bladder. So this is an opening of these. Done. The two kidneys and the two ureters. Easy, right? So these are the two kidneys. This is a kidney.
Silent, silent. Then the ureters. This is another component of the excretory system, that is a ureter. The urinary bladder. This is urinary bladder. And last, this pipe-like structure, that is called as the urethra. Hanji. When the chapter will be completed, I'll do that. नहीं पहले वाला I am not having any idea ना. That ma'am will check. If this chapter will be done completed by me, I'll check it. Electricity. हाँ जी, last benchers. What's the problem to you? Get up, you better please get up. Bring your notebook here. Get up, get up. Get up. Bring your notebook here. Stand in that corner. Anji, these are the 4 components done. You all have completed this much. Now next is, you remember हमने बोला था कि from the heart the oxygenated blood is carried out from the heart to the various body organs by the blood vessel called. Name the blood vessel which carries the oxygenated blood out from the heart. It's pulmonary artery. It is an artery. It is aorta. From the heart जो लेके जाता था aorta. So यहाँ पे भी जो reach up कर रही है, जो blood को लेके आ रही है, oxygenated blood plus waste blood. That is the blood vessel which is an artery. Okay. So how you will be continuing drawing this? This is a blood vessel, है ना? This blood vessel reaches the 2 kidneys and bifurcates. ये blood vessel बाद में bifurcate हो जाएगा इस तरह से, ठीक है? और आगे भी proceed होगा क्योंकि आगे भी इसको जाना है दूसरे organs को देने के लिए. So this is the blood vessel. You can darken it up. इसको थोड़ा dark lines के साथ बना दो ताकि आप लोग को पता रहे कि आपने blood vessel draw किया, ठीक है? So this is the blood vessel that which reaches the kidneys and brings the impure blood along with oxygenated. It also brings the impurities, that is the impure blood towards the kidneys. And this is called as renal artery. The blood vessel that reaches the blood to the kidneys, that is called as renal artery. Artery है लेकिन renal term क्यों लगाया साथ में? Because it represents the kidneys. Kidneys के पास पहुंचने वाली renal artery. ये सारा, ये जो dark नजर आ रहा है आपको, हाँ जी बच्चे, just 1 minute more, do fast, completed. There is another renal vein. Renal vein भी है इसके साथ, ठीक है, जो प्योर ब्लड को बाद में कैरी करके ले जाएगी बाहर, ठीक है? So this is the renal vein. Same manner में आपने renal vein बनानी है. अभी ये थोड़ा सा आपको हॉच पॉच लग रहा होगा, बट ये इसी तरह बनेगा. हाँ जी, इसको और डार्क कर दो. Stop talking and complete it. हाँ जी, complete it. Be fast. क्या नहीं समझ आ रहा? डार्क करो इसको. बुक में भी है. This is the renal vein. This is carrying out the pure blood. Pure blood by renal vein. Auntie done? Online students, kindly complete it. I will send the photo also in your group. Okay? Thank you so much. God bless you. Goodbye. Have a nice day.